Hello, good evening, assalamu alaikum, and thank you so much for joining us on Sports Tonight. मैं हूँ रोहा नदीम, and tonight's episode is going to be very special, very exciting, and there are a lot of reasons for that. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी टीम is about to participate officially in the FIH Pro League. इसका क्या मतलब है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि पाकिस्तान हॉकी टीम के हवाले से हम बात करेंगे, उनकी तैयारी के हवाले से बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स कितनी तैयारी रिक्वायर्ड है इतने बड़े कंपटीशन में कम्पीट करने के लिए अगेंस्ट सच हाई क्वालिटी टीम्स, एंड व्हाट डज बेसिकली द प्रो लीग मीन for Pakistan hockey. We'll talk about all of that in tonight's show. Of course, हमारे साथ हमारे बहुत special guests मौजूद हैं आज के शो में. We're joined by some legends of Pakistan hockey, including the Pakistan hockey coach. और आप लोगों के सवाल मैंने उनसे पूछने ज़रूर हैं, कुछ डिस्कशंस इंपॉर्टेंट करनी है हॉकी टीम की करंट स्टैंडिंग्स के हवाले से. हमें पता है कि नेशंस कप में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, और उसी रनर्स अप पोजीशन की वजह से अब हम प्रो लीग में जा रहे हैं. सो एक एक टूर्नामेंट, एक एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हाई रेलेवेंस रखता है. तो विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट इन टुनाइट्स शो. लेकिन उससे पहले एक क्विक राउंड अप ऑफ न्यूज़ फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. Naomi Osaka produced a commanding performance to knock out third seed Coco Gauff 6-3, 6-2 in a highly anticipated fourth round showdown. Osaka showed flashes of her old brilliance as she took control of the match from the start, while Gauff struggled with her forehand and her serve. The result carried Osaka into the quarterfinals for the first time in 5 years, and she will next play Czech 11th seed Karolina Muchova. Novak Djokovic made history at the age of 38 after his 6-3, 6-3, 6-2 victory over Jan-Lennard Struff saw him become the oldest man to reach the quarterfinals at all 4 Grand Slams in a single season. The victory also broke. Inter Milan have signed Swiss defender Manuel Akanji from Premier League side Manchester City on a season-long loan, according to Serie A records on their official website. The 30-year-old defender joined Pep Guardiola's side from Borussia Dortmund in 2022, playing a part in City's historic treble-winning campaign in his debut season. Akanji has made 71 appearances for his national side and was named in the team of the tournament at Euro 2024. Premier League champions Liverpool have agreed a deal of £35 million for Crystal Palace and England centre-back Mark Guehi, according to British media reports on Monday. Liverpool are also expected to announce the completion of the British record £125 million signing of Newcastle United's Sweden striker Alexander Isak. AC Milan have signed French midfielder Adrien Rabiot from Olympique de Marseille, the Serie A club said on Monday, 2 weeks after the player was put on the transfer list following a dressing room altercation with a teammate. Italian media have reported that the 30-year-old has penned a 3-year deal with Milan, who have paid a reported €10 million. 3-time European heavyweight champion boxer Joe Bugner, who fought Muhammad Ali in a world title bout, has died at the age of 75. Bugner, who won the British and Commonwealth heavyweight titles twice, fought Ali and Joe Frazier in back-to-back fights in 1973 and faced Ali again for his WBA and WBC World Championships in 1975. Bugner's professional boxing career spanned 32 years and 83 bouts, of which he won 69, including 41 by knockout. Japan's Akane Yamaguchi claimed her third world title, and China's Shi Yuki earned his maiden crown as they triumphed in the women's and men's singles finals at the Badminton World Championships in Paris. She leveled the match with a dominant second game before edging a thrilling decider. Yamaguchi eased past Shen Yufei of China in 37 minutes
to become only the second woman to lift 3 world singles crowns. And Pakistan will take part in the upcoming season of the FIH Pro League, with a parliamentary panel informed on Monday that the federal government has agreed to release 250 million rupees for the event. During the course of the meeting, IPC Secretary Muhyiddin Wani informed that the Ministry of Finance had confirmed that it will provide rupees 250 million to ensure Pakistan's first ever participation in the Pro League. He added that while the PHF had demanded rupees 350 million, the government had said that the country's hockey governing body should arrange the remaining amount through sponsorship. Well, this was sports news from around the world. यहाँ पर एक छोटा सा break लेंगे, but when we come back, discussion will continue on Pakistan hockey's departure for the much-awaited FIH Pro League. क्या implications होंगे इसके for overall Pakistan hockey, and are we really prepared? All of this coming on the other side. Don't go anywhere. You're watching Sports Tonight. जी वेलकम बैक, यूर वाचिंग स्पोर्ट्स टुनाइट। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था, आज का शो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। वी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान हॉकी एंड द पास्ट, present and future of Pakistan hockey is what we will focus on. हम जब हॉकी की बात करते हैं, बहुत सारे सवाल हमारे माइंड्स में आते हैं, especially with regards to the glorious era जो पाकिस्तान ने enjoy किया है. We know 3-time Olympic चैम्पियन रह चुका है पाकिस्तान हॉकी में. उसके अलावा जी 4-time वर्ल्ड कप विनर्स भी हम हैं. इसके बीच में इतने मेडल्स, इतनी ग्लोरीज हैं, लेकिन इन द रिसेंट पास्ट समवॉट दैट ट्रेंड हैज़ गॉन ऑन द डिक्लाइन. लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान की करंट हॉकी टीम इज़ ऑन इट्स वे टू प्ले इन द FIH Pro League. What does that mean? And of course नेशंस कप की परफॉर्मेंस के बाद जब हम प्रो लीग में जा रहे हैं तो क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी और क्या तैयारी है हॉकी टीम की, इसके बारे में आज बात करेंगे. वी जॉइंड बाय 3 वेरी स्पेशल गेस्ट. सबसे पहले जी अख्तर रसूल साहब ने हमें ज्वाइन किया. फॉर्मर कैप्टन, Olympian, he's a gold medalist, and of course he has represented Pakistan in many tournaments and won Pakistan many matches. Assalamu alaikum sir, welcome to the show. जी वालेकुम. Thank you for joining us. उनके साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान हॉकी टीम के करंट कोच. He is also an Olympian and has also represented Pakistan in that glorious hockey era. ताहिर ज़मान साहब, अस्सलाम वालेकुम, welcome to the show. वालेकुम जी, thank you. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. उनके साथ हमें ज्वाइन किया जी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रफ़ीक खान साहब ने. अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम. आपने बहुत सारा काम किया डिफरेंट स्पोर्ट्स के ऊपर, हॉकी के ऊपर भी. आपसे भी बातचीत करेंगे. अख्तर रसूल साहब, आपसे शुरू करना चाहती हूँ. आपका डेब्यू 70s में हुआ. पाकिस्तान हॉकी को आपने जब रिप्रेजेंट करना शुरू किया, लेकिन मुझे ये बताएं उस टाइम पे क्या रोड मैप था नेशनल टीम में आने का? आप कैसे सेलेक्ट हुए, कैसे आपने अपना रूट बनाया टू द हॉकी टीम? जो 1970 में मामला थे ना जी, जो हम खेल रहे थे, वो स्कूल कॉलेजेस की हॉकी ज़्यादा कर रहे थे, क्लब की हॉकी हो रही थी. वो जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जब प्लेयर प्रोड्यूस हो रहे थे तो वहाँ जो अकेडमियाँ नहीं बन रही थी, लेकिन ये स्कूल लेवल की वो PTI भी काम कर रहे थे, DPEs भी काम कर रहे थे. तो प्रोविंस लेवल के ऊपर भी हॉकी जो है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी ये सारी क्लब्स खेल रही थी. तो खेलने के अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही थी, प्लेयर खुद ब खुद प्रोड्यूस हो रहे थे. लेकिन उसके बाद का जो आजकल के हालात हैं, ये बड़ा अच्छा फॉर्म है कि भी आपने ये क्वेश्चन ऐसा कर दिया. तो आज भी अगर हम फिर वो ग्लोरीज वापस लेना चाहते हैं तो स्कूल कॉलेजेस की जो प्लेयर प्रोड्यूसिंग नर्सरीज होती हैं उसको हमें फिर रीएक्टिवेट करना पड़ेगा और उनमें इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े सालों से ये इग्नोर्ड हैं, ये
जिसका आपने आइडेंटिफाई किया है कि ये एक बड़ा अच्छा ग्रास रूट से आपको टैलेंट मिलता है, क्योंकि टैलेंट की कभी भी कमी नहीं थी। एम आई राइट? टैलेंट अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वैसे भी पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है, सिर्फ उसको तराशने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, दैट्स वेरी वेल पुट। ताहिर ज़मान साहब, आपसे भी आज बहुत सारी बातें करनी है। पहले तो बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान को एक ऑफिशियल परमिशन और एक ग्रीन सिग्नल मिल गया है टू पार्टिसिपेट इन द FIH प्रो लीग, और उन्होंने भी FIH के जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से भी बड़ा वेलकमिंग एक मैसेज आया है कि इट्स ग्रेट टू सी पाकिस्तान बैक इन एलीट हॉकी, जो भी एक रिच हिस्ट्री पाकिस्तान एंजॉय की है। तो इट्स गुड दैट द वर्ल्ड इज नाउ वेटिंग फॉर पाकिस्तान टू टेक दैट लीप इनटू elite hockey once again. How proud are you and how excited are you as coach? जी शुक्रिया। ये अच्छी खबर हमारे लिए नहीं है, सिर्फ पूरे पाकिस्तान में जो हॉकी लवर्स हैं उनके लिए है। जैसा आपने कहा कि ग्लोबली भी आज भी जो पाकिस्तान की हॉकी का खेलने का स्टाइल है, जो इंडिविजुअल स्किल्स का डिस्प्ले है पाकिस्तान प्लेयर्स का, वो पूरी दुनिया में मिस किया जाता है। जो टॉप लेवल के टूर्नामेंट्स में अनफॉर्चुनेटली जो डिक्लाइनिंग आई है हमारी हॉकी में, पाकिस्तान हॉकी टीम का टॉप लेवल के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ना करना जो है, वो जो एक ग्लोबल हॉकी कम्युनिटी है ना, उनके लिए थोड़ी सी मायूसी का बायस था। वो सारे बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान जो है दोबारा प्रो लीग में शामिल हो रहा है, और प्रो लीग एक ऐसा फॉर्मेट है कि जहाँ दुनिया की बेहतरीन 8-9 टीमें आपस में डबल लीग सिस्टम मैचेस खेलती हैं। सो जहाँ तक मेरी एज ए कोच अप्रोच है, एक खुशखबरी भी है और एक चैलेंज भी है, क्योंकि हम दुनिया की बेहतरीन 8 टीमों से जो है वो आमने सामने होंगे, और हमें इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि हमारी जो तैयारी है वो एक रूटीन की तैयारी नहीं होगी, हमें कुछ हट के करना होगा। सो तैयारी का एलिमेंट भी जो है वो बड़ा ही लाजमी फैक्टर है कि हम बेहतर तरीके से करें, प्लेयर्स को प्रॉपरली लुक आफ्टर करें, और उनकी जो तैयारी है इस लेवल की हो कि हम दुनिया की बेहतरीन टीमों से अच्छा मुकाबला कर सकें। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान हॉकी की जो ग्लोरी, आपने कहा कि 3 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल हैं, 4 वर्ल्ड चैम्पियनशिप हैं हमारे पास, अगर हमने पाकिस्तान हॉकी को उस ट्रैक पे वापस लाना है तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ही लाजमी फैक्टर था, क्योंकि जब तक आप दुनिया की बेहतरीन टीमों से खेलेंगे नहीं, आप अपनी सेल्फ वैल्यूएशन प्रॉपरली नहीं कर सकते कि दुनिया के बाकी टीमें कहाँ हैं और आपकी टीम कहाँ है। सो मुझे लगता है जो काफ़ी सालों से एक गैप था कि हम दुनिया की बेहतरीन टीमों से खेल नहीं पा रहे थे, वो गैप फिलअप हो जाएगा और हमें अपनी रियल स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाने का मौका मिलेगा। और अल्टीमेटली लगता है कि इसमें इतने पैसे लगेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है अल्टीमेटली पाकिस्तान हॉकी को दोबारा ट्रैक के ऊपर लेके आएगी, और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि इस एक्सपीरियंस से जो प्रो लीग खेलने के बाद प्लेयर्स गेन करेंगे, वो अल्टीमेटली दूसरे टूर्नामेंट में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि प्रो लीग के बाद व्हाट विल बी नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान हॉकी। लेकिन हम अब क्योंकि ऑपोजिशंस जो हैं पाकिस्तान हॉकी के लिए बड़ी मुख्तलिफ होंगी, जिस तरह ताहिर ज़मान साहब ने आइडेंटिफाई किया कि ये कोई ठीक है, नेशंस कप में हमारी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, बट हम अब खेलने जा रहे हैं टॉप 8 टॉप 9 टीम्स से। ये तैयारी पाकिस्तान हॉकी के लिए कितनी ज़रूरी होगी, कितने इंपॉर्टेंट होगी कि आप अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की टीम्स के आगे अब कम्पीट करेंगे? ये कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान हॉकी के लिए? देखिए, बात यह है कि ठीक है, 80 के बाद से दुनिया में खेलों में ये तब्दीली आई है, एक खेल ग्राउंड में होता है, एक खेल बाहर हो रहा होता है। अगर हम पुरानी गलेरों की बात करते हैं तो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो था, अगर देखा जाए तो हमारा वर्ल्ड में बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, लेकिन माजरत के साथ पाकिस्तान के वर्ल्ड में हमारा वो मुकाम नहीं है कि जो होना चाहिए था। खेल एक अलग चीज़ है, ठीक है, मेरे बच्चों ने मेहनत की है और हमने मतलब ये है कि कुदरत की तरफ से हमें एक मौका मिला है। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि अभी तो खैर वो बहुत दूर बात चली जाएगी। बात कहने की यह है कि अब देखें 1 माह हो गया है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अभी तक कोई ऐसा प्रोग्राम प्लान हमें नहीं बताया, ना हुकूमती सतह पर, ना निचली सतह पर, ना अखबारात के ज़रिए कि हम इस खेल की तैयारी क्या करें। दूसरी बात यह है कि जैसे ताहिर साहब ने भी बात की, दुनिया खेल बहुत बदल गए हैं। ताहिर अकेला कोच है यहाँ पे, टीमों के जो वर्ल्ड चैम्पियन टीमें हैं उनके साथ 7-7 कोच होते हैं। यहाँ पे मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो मैं 7 कोच कहाँ से ले आऊँगा? तो ये तो सारे बहुत एक हमें लिमिटेशंस का अंदाज़ा है जो कि इस वक्त हॉकी की टीम के साथ एसोसिएटेड हैं। और एक और फैक्टर ये भी है कि क्योंकि ये बड़ी देर लग गई इस पूरे प्रोसेस को होते होते कि
ठीक है, न्यूजीलैंड का विड्रॉल तो हमें पता था पहले ही आ गया था, लेकिन उसके बाद ये पूरा प्रोसेस चला फिर, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो हमारा वेस्ट हो सबकी गया। बात अपनी जगह पे है। मैं अगर इसको थोड़ा सा एड्रेस करूं, अभी तो अप्रूवल हुई है, तो शायद इनके इल्म में नहीं है, लेकिन मैं बीइंग ए कोच बता सकता हूं कि हमने ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। अपने जो ट्रेनीज़ हैं, जो मोस्ट लाइकली पाकिस्तान टीम के मेंबर बन सकते हैं लड़के, उन सबको हमने जो ऑफ सीज़न ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो उनको हमने होमवर्क दिया हुआ है। हम रेगुलरली व्हाट्सएप ग्रुप पे उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं और चेक करते हैं। वो हमारी सारी जो कोशिश है या तैयारी है इसी सिलसिले में है कि अगर हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो ये नहीं होना चाहिए कि फिर हम एकदम से तैयारी शुरू करें। हमारे पास पहले ही अपनी कंडीशनिंग लेवल एक उस सर्टन लेवल तक होनी चाहिए जहाँ से हम उनको गेज करके टेस्ट करके और फर्दर उनकी डेवलपमेंट कर सकें। सो हम अपने तौर के ऊपर लगे हुए थे। अब जब ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हम इंशाल्लाह सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेशंस जो है शुरू कर देंगे और स्किल स्पेशलाइजेशन के ऊपर काम करेंगे। ये बिल्कुल, इंपॉर्टेंट है। एंड एज मीडिया ऑफ कोर्स हम क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे तैयारी को भी, और हमारी कोशिश होगी कि वो मोमेंटम हम जो है ड्राइव करें अपने तौर पे भी। बट 2 मैचेस जो हैं इंडिया के अगेंस्ट तो पक्के हैं, ये तो हमें पता है। प्रो लीग में इंडिया पाकिस्तान के 2 इंपॉर्टेंट क्लैशेस आने वाले। आपने इतने ज़बरदस्त हिस्टोरिक मैचेस खेले हैं इंडिया के अगेंस्ट, जाहिर है उस टाइम पे पाकिस्तान का रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट बहुत बेहतर था। अब रिसेंटली इंडिया की बड़ी अच्छी एक विनिंग स्ट्रीक चल रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट, 14 मैचेस से वो compete करते हुए जीतते हुए आ रहे हैं। सो अब आप एज अ वेटरन ऑफ द स्पोर्ट क्या एडवाइस करेंगे यंग टीम को ऑन हाउ टू फेस एन अनाक राइवल लाइक देखिए इंडिया? अभी ताहर जमान चूँकि बहुत एक्टिव कोच हैं और समझदार हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाह रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट को भी बताया, सेक्रेटरी को भी बताया कि जबकि इंडिया पाकिस्तान की अभी रिसेंटली जंग हुई है, तो जंग होने के बाद जो टेंशन जो है अगले मैचेस में वो उसकी नेचुरली क्रिएट ज़्यादा हो जाएगी। अब बोल तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में हमेशा हो रही है। तो खुशी की बात ये है, मैं अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ और मुबारकबाद भी देना चाह रहा हूँ हॉकी फेडरेशन को कि जो ये एक मार्का है कि प्रो लीग में शिरकत पहले। अब मैं मुबारक थैंक यू कहना चाह रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब का एक हॉकी लवर्स की हैसियत से, और आसम मलीक साहब का। फिर मैं सराहना चाहता हूँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर को, सेक्रेटरी को, उनकी कॉविशों को कि उन्होंने ये फंड्स जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलके, और आईपीसी सेक्रेटरी जो हैं उसमें वो भी, और राना सनाउल्लाह साहब भी इसमें मुबारकबाद के हकदार हैं। सब ने, डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड भी। कहने का मकसद ये है कि अब महसूस हो रहा है कि सारे जितने स्टेक होल्डर हैं वो एक पेज के ऊपर हैं टू डेवलप ए वर्ल्ड क्लास टीम। आज तक जो पिछले 2 साल से पाकिस्तान टीम खेल रही थी वो एशियन टीमों के खिलाफ खेल रही थी। एशियन टीमें में कौन थे भाई? आज आके मैच आपके मलेशिया के साथ, या अजलान शाह या जापान के साथ, या इंडिया में किसी वक्त कंपटीशन हो जाए। लेकिन अब चूंकि उन्हें वहाँ ऑस्ट्रेलिया भी मिलेगा, हॉलैंड भी मिलेगा, जर्मनी भी मिलेगा, स्पेन भी मिलेगा, इंग्लैंड भी मिलेगा। तो ये सारी वो टीमें जो वर्ल्ड टाइटल जीत चुकी हैं और वर्ल्ड की नंबर 1 से लेकर 6, 7, 8 टीमें जो वर्ल्ड में 1, 2, 3, 4 फिनिश करती हैं, उनसे कंपटीशन जब आएगा पाकिस्तान हॉकी टीम का, तो ये एक नई टीम जो है वो डेवलप करेगी। ये बिल्डअप पीरियड है। ये 2 साल जो आपने एशिया में थोड़ी सी हर फाइनल खेल रहे हैं आप, अब एक वर्ल्ड क्लास टीमों के साथ फिर आपके जो टेस्ट है, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी जो मिली है, ये इससे इंशाल्लाह पाकिस्तान हॉकी को भरपूर फ़ायदा होगा और ये एक टीम डेवलप होगी इंशाल्लाह। इसी में से आप फिक्र ना करें, हसन सरदार भी निकलेंगे, शहबाज सीनियर भी निकलेंगे, इसी से सब ये खिलाड़ियों से भी यही परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। और आई थिंक ज़्यादा बड़े नाम निकलेंगे। हम अभी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी प्लेयर्स को मिल रही है। आपने अभी थोड़ा सा इस पे हाईलाइट किया कि आपकी ऑलरेडी जो तैयारी बैक एंड पे चल रही थी, बट नाउ दैट फॉर्मली एक्सेप्टेंस आ चुकी है, आपको पता है कि अब 2-3 महीने का टाइम है उसके बाद आपके पास तैयारी के लिए, तो
क्या की एरियाज़ हैं, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशंस कप फाइनल तक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो थी वो किसी के मतलब हम सारे बहुत इम्प्रेस थे कि कितनी लिमिटेशंस के बावजूद पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त खेला, बट अब उसके बाद अगले स्टेप के लिए क्या तैयारियां आप कर रहे हैं? व्हाट आर द की एरियाज़, चाहे वो डिफेंस में हो चाहे वो अटैक में हो, कहाँ पे आपको लगता है कि पाकिस्तान विल हैव टू डू बेटर दिस टाइम? देखिए जनरली बात करें तो सारे हॉकी एक्सपर्ट्स ने हमारा वो जो फाइनल था न्यूजीलैंड के साथ, अनफॉर्चुनेटली वो एक ज़्यादा मार्जिन से हम लोग हार गए, लेकिन पिछला अगर पूल मैच देखें तो हम वी वर वेरी क्लोज, इनफैक्ट वी वर विनिंग न्यूजीलैंड टिल लास्ट क्वार्टर, वो आखिर पे आ गए, उन्होंने 4-3 से वो मैच हमें जीता। सो एक मैच को एग्जाम्पल नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चीज़ जिस चीज़ की कमी रही वो फाइनल में हमसे बेहतर तैयारी करके आए, लेकिन हमारा जो सेमीफाइनल जीतने के बाद का जो सेलिब्रेशन मोड था ना वो थोड़ा लंबा पीरियड हो गया। सो ये चीज़ें सीखने वाली हैं। ये जो हाई परफॉर्मेंस हॉकी है ना वहाँ पे ये एलिमेंट बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। सो इसलिए ये ज़रूरी था कि हम प्रो लीग में पार्टिसिपेट करें। प्रो लीग में सारी दुनिया की बेहतरीन टीमें हैं, हर रोज़ हम अंडर हैवी प्रेशर हर मैच में खेलेंगे। और बहुत चीज़ें आप पिकअप करते हैं जब आप प्लेयर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जब आप देखते हैं कि दूसरी टीम्स के प्लेयर्स कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे अपना खुद का ख्याल रखते हैं, मेंटली फिजिकली बोथ। सो ये जो मैचेस फाइनल में आके जो नर्व्स पे कंट्रोल जो है वो कम हो जाता है, हम इमोशनल हो जाते हैं, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवर डू करने की कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली जो हमें करना चाहिए, जो गेम प्लान का हिस्सा होता है उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि जो प्रो लीग जो है ना ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये मैचेस खेलने के बाद हमारे लड़कों की जो गेम इंटेलिजेंस है, जो सस्टेनेबिलिटी का लेवल है उनका प्रेशर के अगेंस्ट, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी और आप देखेंगे कि इस प्रो लीग के बाद वाली जो पाकिस्तान हॉकी टीम होगी दैट विल बी अ डिफरेंट टीम इंशाल्लाह। इन लड़कों बहुत सारे लड़के देखें अभी तक जो हैं वो पता नहीं कितने कितने साल गुजर गए हैं, उनको बेल्जियम या हॉलैंड के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिला। उनका कैरियर 4 साल पे मुहित है, पाकिस्तान से खेल रहे हैं लेकिन इन टीमों के खिलाफ खेलने का मौका वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स के साथ कंपटीशन होगा और जितना ये फिजिकल कंपटीशन है रफीक साहब उतना ही मेंटल भी है। एम आई राइट? ये साइकोलॉजिकली भी प्लेयर्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा टू प्ले इन सच हाई प्रेशर गेम्स। देखिए प्रो लीग में हमें बहुत से फ़ायदे होंगे। सबसे अहम मैं यहाँ बात करूँगा, हमारी गुज़िश्ता 8-10 साल से चैम्पियनशिप होती है ना, चैम्पियनशिप की स्पीड आप देखें और किसी वर्ल्ड की टीमों का मैच फाइनल देखें, उसकी स्पीड देखें, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मेरे लड़के जो अच्छी टीमों से खेलेंगे तो बेहतरी आएगी, लेकिन इसमें देखना ये होगा। अच्छा दूसरी बात ये है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ने कवर कर लिया है। मेरी टीम अगर शिकस्त खाती है ना, एक तो मेंटली और दूसरा स्टेमिना से शिकस्त खाती है, क्योंकि माजरत के साथ पाकिस्तान में जो खुराक मिल रही है, जो हमें फैसिलिटी मिल रही हैं वो तो है नहीं ना। बच्चा बेचारा पता नहीं किस तरह पानी पी पी के तो हॉकी खेल रहा हो, वो खुराक नहीं है उसकी। और जब हम यूरोप के खिलाड़ियों को मुआवजा करते हैं तो फ़िलहाल तो हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पास ताकत है, क़ुव्वत है, लेकिन जब तक आप उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे खिलाड़ियों के जहनों में ये आटे चीनी का नहीं होना चाहिए कि मैं खेलने जा रहा हूँ, मेरे घर में आटा है कि नहीं। पहले हमें इस तरह भी फोकस करना होगा। प्रो लीग से फ़ायदा है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मुझे इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इसका भी देखे, इस पर भी गौर करे और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी चाहिए माजरत के साथ हर वक्त हुकूमत पाकिस्तान से मांगने की कोशिश ना करे, कुछ अपना सिस्टम भी बनाए, कुछ अपनी मार्केट वैल्यू को बढ़ाए। अगर मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ेगी तो लोग राग़िब होंगे। खेल का हार जीत एक अलग चीज़ होती है, एक मार्केट होती है। कैसे बनाए मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू माजरत के साथ मार्केट वैल्यू मैं बताता हूँ। अख्तर साहब जो प्रेसिडेंट थे, तो जब ये कहीं स्पॉन्सर पे जाते थे ना, ये नहीं जाते थे, ये सिर्फ फ़ोन करते थे तो उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी। लेकिन माजरत के साथ मैं अंदर की बातें नहीं करूँगा, ना जाने क्या बात है कि जब भी हॉकी की स्पॉन्सरशिप की बात होती है तो लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं। ये हॉकी फेडरेशन को लोग सरकर्ता लोगों को चाहिए वो सोचे। तो चले, अब चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, टीम जीतना शुरू करेगी तो ऑब्वियसली सब अभी ध्यान देखें ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। काफ़ी अर्से के बाद पीटीसीएल हमारा मेन स्पॉन्सर बना है और मार्केटिंग की तरफ भी तवज्जो है, बाकायदा मार्केटिंग का शोबा भी बना है। खान साहब ठीक है, अपने एक्सपीरियंस बेस बातें कर रही हैं, माजी में कुछ ऐसे चीज़ें रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ हैं। क्योंकि कुछ हिस्सा है उन फंड्स का जो कि कहा गया है कि स्पॉन्सरशिप खुद जनरेट करेंगे, रेज करना है, तो ये चैलेंज भी है। देखिए मेरी बात सुने, अभी तहार जमान सब इधर बैठे,
आज की जो गुफ्तगू है ये बहुत बड़ी नाजुक जगह के ऊपर अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। बड़ी टीमें हैं इस टूर्नामेंट में, बड़ी टीमें में एक टेक्निकल गेम प्लान ये अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अगर आप हार जाते हैं, किसी ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं, तो सेकंड मैच भी अगर ऑस्ट्रेलिया चूंकि आपको बीट कर गया है, लिहाजा डिमोरलाइज होके आपने दूसरा मैच भी हार जाना है। वहाँ स्टैंडिंग की, वहाँ कोच को मोटिवेट करके टीम को बिल्डअप और खड़ा करने की ज़रूरत होती है, ताकि ये एक उसकी। और जहाँ तक स्पॉन्सरशिप का तल्लक है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को एफर्ट करनी पड़ेंगी और उसके लिए जो कुछ हमसे हो सकता है हम भी तैयार हैं, हम भी सोल्जर हैं। सिर्फ मैं ही सोल्जर नहीं हूँ हॉकी का, ओलंपिक प्लेयर जितने भी हैं जो बैठे हैं, मैं सबको कहता हूँ कि अब चूँकि हॉकी एक बिल्डअप फिर अपने रास्ते पे वापस आ रही है, चले हम इनके साथ जोर लगाएं, इनको जोर लगाएं और कम बैठ। बी कलेक्टिव एफर्ट, क्योंकि ऑब्वियसली सबका गोल एक है और एक कलेक्टिव एफर्ट करने की ज़रूरत है। व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए अगर आप एक्सप्लेन कर सकें प्रो लीग का फॉर्मेट, क्योंकि थोड़ा सा इट इज़ एन एक्सटेंडेड चैलेंज ओवर मैनी मंथ्स जिसमें प्लेयर्स को डिफरेंट स्टेजेस में compete करना है। थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि क्या फॉर्मेट होता है प्रो लीग का एंड व्हाई इज़ इट सच अ हेवी इन्वेस्टमेंट। देखिए, प्रो लीग बेसिकली जो है ना वो डबल लीग फॉर्मेट पे खेली जाती है। हर टीम ने दूसरी टीम से 2 मैचेस खेलने हैं, जिसको एक होम गेम कहा जाता है, एक अवे गेम कहा जाता है। सो अब अगर हम 9 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें, तो पाकिस्तान को एज ए 9th टीम 16 मैचेस खेलने हैं 8 टीमों के अगेंस्ट। पहले ही होता था कि होम एंड अवे बेसिस होती थी, जो इसके शुरू में 2 एडिशन हुए, उसमें ये बड़ा ही एक्सपेंसिव प्रैक्टिस थी सारी प्रो लीग की। टीमों का मैच खेल के एक फिर वापस चले जाना, दूसरी टीम का आना। फिर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इसको रीडिज़ाइन किया है, रीअरेंज किया है। अब ये सारा जो प्रो लीग का सिस्टम है, ये 3 से 4 डिफरेंट छोटे टूर्नामेंट में उन्होंने चेंज कर दिया है। जैसा कि दिसंबर में प्रो लीग ने स्टार्ट होना है, फर्स्ट लेग में पाकिस्तान जहाँ कहीं भी जाएगा खेलने, वहाँ पे 2 टीमें मौजूद होंगी। पाकिस्तान 4 मैचेस उनके अपने होम एंड अवे दोनों उधर खेल लेगा। फिर अगला लेग जो है वो फरवरी में होना है। फिर पाकिस्तान जाएगा फरवरी में किसी यूरोपियन कंट्री में, वहाँ पे उन्होंने 4 मैचेस खेलने हैं। 2 टीमें, एक तो होस्ट होगी, एक कोई और टीम आई होगी। हम 2-2 मैचेस दोनों टीमों से खेल के 4 खेल लेंगे। फरवरी के एंड में फिर तीसरा इसकी लेग होनी है, उसमें भी इसी तरह 4 मैचेस खेलने हैं। फिर जून में जाके इसकी लास्ट लेग है, वो मोस्ट लाइकली शायद पाकिस्तान की इंग्लैंड में होगी, जहाँ पे मे भी हमें इंग्लैंड और इंडिया से सामना करना पड़े, 4 मैचेस खेलने पड़े। एंड व्हेन वाज द लास्ट टाइम पाकिस्तान हॉकी टीम प्लेड इन दीज कंडीशंस? ये जो यूरोपियन जिनका आपने नाम लिया, ये जो वेन्यूज हैं, इन वेन्यूज़ पे रिसेंटली तो पाकिस्तान ने लास्ट जो सेकंड लास्ट नेशन कप हुआ वो पोलैंड में खेला है। लेकिन अगर हम बात करें जर्मनी, हॉलैंड की और अर्जेंटीना या ऑस्ट्रेलिया की, तो मुझे नहीं लगता कि इन बच्चों ने काफ़ी सालों से इधर खेला होगा। सो इन कंडीशंस को, उन कंडीशंस में जाकर खेलना, उस क्राउड के अंदर खेलना, इन टीमों के ख़िलाफ़ खेलना, ये इटसेल्फ बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, जो गेम इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करेगी, जो आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगी। जब हम हाई परफॉर्मेंस हॉकी की बात करते हैं ना, तो हाई परफॉर्मेंस हॉकी में जो बेसिक कोचिंग फंडामेंटल्स हैं ना, उनमें से सबसे जो सुप्रीम फंडामेंटल है वो आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ होती है, जो आपने सही मानों में दूसरों को सुपरसीड करने के लिए इस्तेमाल करनी है। कि प्रेशर सिचुएशन में आपने सस्टेन कैसे करना है, फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, क्विक डिसीजन मेकिंग कैसे होगी। ये सारी चीज़ें जब तक आप दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ खेल के प्रैक्टिकली उन गेम सिचुएशंस में जाके नहीं करेंगे, तो आप गेम इंटेलिजेंस इंप्रूव ही नहीं कर सकते। नो टेक्स्ट बुक कैन टीच यू दीज थिंग्स। ये आपको सिर्फ जो है वो फील्ड पे आप सीखते हैं। और आई थिंक पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए नो डाउट ये बहुत बड़ा challenge hoga, and it's of course going to be very beneficial for the future of Pakistan hockey. A short break here, but when we come back, so much more waiting on the other side. Don't go anywhere. You're watching Sports Tonight. Ji, welcome back. You're watching Sports Tonight, and we're talking about Pakistan hockey. Of course, Pakistan
हॉकी टीम जो है वो FIH प्रो लीग में पार्टिसिपेट करने जा रही है। वी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान प्रेपरेशन एंड व्हाट द प्रो लीग मीन्स फॉर दिस टीम। हमने अभी बात की, कुछ कंपैरिजन्स हम कर रहे थे तैयारी के, लेकिन हम क्विकली रफ़ीक साहब आपसे बात करना चाहूँगी अबाउट द फैक्ट कि पाकिस्तान ने तकरीबन अब 13 साल हो गए हैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई पाकिस्तान टीम नहीं कर सकी है। अब जिस तरह प्रो लीग में भी आपको पता है कि टीम जो है वो क्वालिफाई करेगी, जो जीतने वाली टीम होगी अगले ओलंपिक्स के लिए, कितने ज़रूरी होते हैं ये प्लेटफॉर्म्स और ये टूर्नामेंट्स ओलंपिक क्वालिफिकेशंस के लिए, और क्या पाकिस्तान का ओलंपिक क्वालिफिकेशन का जो अधूरा ख्वाब है वो अभी कहीं जल्द पूरा होगा? देखिए, एज ए पाकिस्तानी मेरी तो खुदा से यही दुआ है कि पाकिस्तान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करे, और मैं ये समझ भी रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ कि हॉकी फेडरेशन में हैं कुछ लोग जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, वर्कर में तो ताहिर हैं, दिन रात काम करते हैं ये, और इसके लिए है। फिर बात फिर वही होगी कि हमारी जो प्रॉपर तरीका का मतलब हमारा जो कैंप लगते हैं, कैंप में देखना पड़ेगा। बात फिर वही आ जाएगी कि ताहिर सब देखें ना, मेरे पास ना फिजियो प्रॉपर कोई है, ना कोई डॉक्टर प्रॉपर है, ना कोई मतलब खाने पीने का मुझे खिलाड़ियों को नहीं पता क्या खाना है। किसी हद तक तो ये बता देते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं फिर बात वही कर रहा हूँ, हमें इस पर भी फोकस करना होगा। एकदम से हमें प्रो लीग ठीक है, खेलें जाएं खेलें और कामयाबी हासिल करें, लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी बेहतरी की तरफ भी तो थोड़ा बहुत हमें काम करना चाहिए। बेहतरी, अब देखिए ये जो स्टेप्स हैं, प्रो लीग खेलेंगी फिर ही जाके कहीं पे आपको ओलंपिक के लिए एक रास्ता निकलेगा ना, एक रोड मैप निकलेगा। एम आई राइट? हम कब तक हम बैठे रहेंगे कि हमने एशियन में रीजन में ही खेलते रहना और कम्पीट करते रहना? अगर आप मुझे एक बात ये इजाज़त है, दें, हमें देखिए ना अब पता क्या होगा। अब देखिए ना, हर शख्स ये लगा हुआ है प्रो लीग, मेरी आवाम जो है ना वो एक फोकस बन जाता है। खुदा न खास्ता अगर हमारी परफॉर्मेंस वो नहीं आती तो हमें थोड़ा सा हकीकत पसंदी की तरफ भी देखना चाहिए ना, कि हमारी देखिए ना ख्वाहिश तो सबकी एट दिस पॉइंट पाकिस्तान को प्रो लीग जीतने के बारे में हम थोड़ी इस वक्त हम एक स्टेपिंग स्टोन है। इट्स गोइंग टू बी अ बिग लर्निंग कर्व। आई थिंक वी ऑल सिटिंग हियर रियलाइज दैट कि मुझे लगता है रफीक साहब को ना कोई किसी ने थोड़ी सी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी फीडबैक correct करते हैं। मैं करेक्ट करता हूँ। अभी नेशन कप हम खेलने गए हैं, हमने वहाँ पे तकरीबन कोई 6.5 लाख रुपए के एनर्जी ड्रिंक्स खरीदे हैं लड़कों को ड्यूरिंग द गेम्स और आफ्टर द गेम उनकी इंस्टेंट रिकवरी के लिए यूटिलाइज करवाने के लिए, जो कि प्रीटी स्टैंडर्ड है फ्रॉम जी बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि इसके बगैर उनका बेस्ट इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, दे कैन नॉट परफॉर्म वेल। जब हम ट्रेनिंग कैंप में थे, सेंट्रलाइज्ड सेशन जो हमारा इस्लामाबाद में था, मॉर्निंग सेशन के बाद इमीडिएटली उनको बनाना एंड डेट्स का शेक मिलता था ताकि इंस्टेंट रिकवरी हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन, आपकी डाइट और तैयारी क्या होती थी फॉर द बिग गेम्स एंड फॉर बिग टूर्नामेंट्स? देखिए हमारे ज़माने में तो लोग देसी खाना, देसी क्यों 3 बकरे खा जाते थे वो लोग। 3 बकरे खा के ओलंपिक्स में कम्पीट करते थे और मेडल जीतते थे। फिर मेडल जीतते थे, और मुझे याद है कि कंपटीशन हो रहा था खिलाड़ियों में खाने का भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये फेडरेशन का और कोचेस की बैठ के एक उसका मील जो है खिलाड़ियों का, वो तो तय करते ही है, और इसके ऊपर नेचुरली हर जमान कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। नंबर 1। नंबर 2, असल बात ये है कि अब इतने बड़े मैचेस खेलने जा रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ, ऊपर से आप ये फरमा रही हैं कि ओलंपिक का क्वालिफाई भी करना है आपने। ये विश आपकी भी है, मेरी भी है। अब 2 टीमें उसमें करेंगी, 1 और 2 विनर और फाइनलिस्ट, दोनों फाइनलिस्ट बड़ी टीमें मौजूद हैं। लेकिन ये हमारी टीम आई किधर से है? 18वें नंबर से आ रही है। ये 18वें नंबर से आ रही है और वहाँ से कम बैक हो रहा है। जब इतनी पस्ती से नीचे से टीम आ रही हो तो फौरी तौर पे आप कहते हैं जी ना वो सारी दुनिया को जाए और सारी दुनिया को फतह करके वापस आ जाए। रियलिटी ये भी है। बिल्कुल। अब ये दुनिया बहुत आगे चली गई है। पाकिस्तान के पास सारी टर्फें हैं, 12, 6 नकारा है। जाइए जाके हॉलैंड में देखिए, कोई 1200-1400 टर्फें उधर लगी हैं। वो उन्होंने जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ भी टर्फ लगाई हुई है।
सही है। तो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है। ये तो मैं थैंक यू कह दिया प्राइम मिनिस्टर साहब को जिन्होंने और आसम मनीष साहब ने जिन्होंने प्रो लीग में जाने के लिए फंड्स जो हैं वो रिलीज़ किए हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर टीम ने बिल्डअप होना है तो इसको साल में तहरजुमान को 6 मरतबा अपनी टीम यूरोप में लेके जानी चाहिए और जूनियर टीम को भी 4 मरतबा जाना चाहिए, ताकि जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो तो इन खिलाड़ियों को पता चले। उनको हमने खिलाया ही नहीं है, उनको हमने वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी। एक्सपेक्ट करते हैं कि जनाब ये ओलंपिक चैम्पियन भी हो, वर्ल्ड चैम्पियन भी हो जाए, उनको पूरा मुआवजा दे, पूरी अपॉर्चुनिटी दे, रिजल्ट देंगे बच्चे इंशाल्लाह। और बिल्कुल टाइम लगेगा, ये ओवरनाइट सक्सेस कहीं पे भी नहीं मिलती, किसी भी स्पोर्ट में नहीं मिलती, आपको अपना टाइम ड्यू करना पड़ता है। लेकिन कुछ जिम्मेदारी जो है वो ज़ाहिर फेडरेशन की है या पॉलिसी मेकिंग, जिस तरह आप भी इन्वॉल्व हैं एज अ कोच, लेकिन कुछ जिम्मेदारी प्लेयर की अपनी है कि उन्होंने अपना ख्याल एज एन एथलीट कैसे रखना है। इस पे एक एक चीज़ अवेलेबल है कि आपने अगर अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, आपने अपनी फिटनेस और हेल्थ को करना है, प्लेयर खुद करेंगे। आप व्हाट डू यू एडवाइज देम कि आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है एज एन एथलीट? ऐसा ही है। मैं यहाँ पे डेफिनेटली इस बात को मेंशन करना चाहूँगा और इस चीज़ का मैं क्रेडिट खिलाड़ियों को देना चाहूँगा कि कुछ 6 महीने के टाइम से वो ये समझने में कामयाब हो गए हैं काफ़ी हद तक कि जो फिज़िकल फिटनेस है इट इज़ देयर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारा वो नहीं है कि आप कैंप में आएंगे तो हमने आपको ट्रेनिंग करवा के फिट करना, नहीं। अब उनको पता है कि ये हमारी ज़ाती जिम्मेदारी है। हमारा काम है उनको प्रोग्राम देना, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और कब कब करना है, और उनका काम है इसको फॉलो करना। इसलिए मैंने जो पहले व्हाट्सएप ग्रुप की मैं एक एग्जांपल दी है ना, उसमें हमने उनको प्रोग्राम दिया हुआ कि आपका पावर एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम है, हफ्ते में इतनी दफ़ा करनी है, ये काम करना है, इतनी रेपिटेशंस हैं और ये करना है आपने। एंड्योरेंस के लिए अलहदा दिया हुआ है। सो अब उनको ये पता चल गया है कि ये उनकी ज़ाती ज़िम्मेदारी है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारा काम ये है कि उनको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है बताएं। उनकी डाइट्स जब सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेशंस हैं उसका प्रॉपर ख्याल करें, उनको एनर्जी ड्रिंक्स दिए जाएँ, उनको हर तरह से जो भी एक अच्छा ईज़ एटमॉस्फेयर होता है ना वो प्रोवाइड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सेकेंडली मैं फिर अख्तर भाई की बात को ही आगे लेते हुए हमें इस चीज़ की आदत डालनी चाहिए कि जो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट है ना उसको गेज करना शुरू करें। जो ग्रेजुअल परफॉर्मेंस आती है ना उसको भी हम अप्रिशिएट करना शुरू करें। हमारे लिए, पूरी कौम के लिए और मीडिया के लिए एक ही परफॉर्मेंस है जब आप नंबर 1 हो जाएं, और 20 में से नंबर 1 होना एक लंबा सफ़र है, इतना आसान तो नहीं है। सो अगर हम आहिस्ता आहिस्ता ब्रॉन्ज मेडल जीत रहे हैं, सिल्वर मेडल जा रहे हैं, एशियन लेवल्स पे फाइनलिस्ट हो रहे हैं, अब प्रो लीग में आप शामिल हो गए हैं, तो इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। मुश्किल तो ज़रूर है ये सारी चीज़ें, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरह गवर्नमेंट ने अभी ये एक अच्छी खुशखबरी दी है, इससे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी मौका मिलेगा कि वो अपनी मार्केटिंग को इफेक्टिवली यूज़ करे और स्पॉन्सरशिप भी लेकर आए। सो दोनों तरफ से है। गवर्नमेंट अगर सरपरस्ती करेगी तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी बेहतर तरीके से अपना रोल प्ले करने का मौका मिलेगा। मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ तहरजुमान की, जो इन्होंने बच्चों को जो प्लान दिया और ग्रुप में उसकी असल में दरअसल अगर आप किसी की ड्यूटी लगाते हैं ना, ये करने उसको ट्रस्ट करें, ये आपके बच्चे हैं, बट वेरीफाई। फिर आपका जो उनको शेड्यूल है उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये आपका जो चेक्स एंड बैलेंस है, ये आपकी क्लोज रिलेशनशिप है। और वो जो आपका राब्ता है वो टूटना नहीं चाहिए। अव्वल तो फेडरेशन को ये करना चाहिए कि इनकी थ्रू आउट एक सिस्टम बना के ये 3 हफ्ते ट्रेनिंग, 1 हफ्ता रेस्ट, 4 हफ्ते ट्रेनिंग, 1.5 हफ्ता रेस्ट, इस तरह का शेड्यूल बनाना चाहिए कि ये खिलाड़ी इंटैक्ट रहे। लेकिन अगर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स ये लंबे पीरियड कर जाते हैं तो फिर इनको चेक्स एंड बैलेंस जो है रखना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे डिस्कशन को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हमें हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कुछ सवाल भेजे हैं आप लोगों के लिए, जो कि मैं थोड़ा इंक्लूड करना चाहूँगी पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, क्योंकि फैंस जो हैं वो ज़ाहिर है थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं, कभी कभार ज़्यादा पैशनेटली सोचते हैं। तो एक जो हमें एक्स जो प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू एक सवाल आया जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन अ कंट्री with plenty of talent, why we cannot find another Sohail Abbas? Of course, एक fan favorite हैं सोहेल अब्बास, क्यों जी दूसरे सोहेल अब्बास नहीं मिल रहे? मैंने आपको बताया
कि सुहेलबाज भी आज कोई नए तरीके से नहीं आया था, शहबाज सीनियर आया था कोई नए तरीके से, वो स्कूलों कॉलेजों से और यूनिवर्सिटियों से डेवलप होके अब निकले हैं। जब इन्होंने वहाँ काम करना बंद कर दिया है, जब ये जो अब पर्सनल सर्वेंट बन चुके हैं डीपीज और पीटीआई अपने बॉसेस की, वो उनकी प्रिंसिपल की टोकरियाँ उठाने के लिए राज़ी हो जाते हैं, खिलाड़ियों को ग्राउंड में लेके नहीं जाते। फिर दूसरी बात यह है, गवर्नमेंट के लिए एक लम्हा फिक्रिया बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने भी स्पोर्ट्स के ऊपर दाखिले बंद कर दिए। दाखिले 2%, आप बताएं 2% से कौन सी टीमें बन जाएंगी, कितनी टीमें बन जाएंगी? जाहिर है, और ये बहुत बड़ा एक एरिया ऑफ कंसर्न है। हमारे ज़माने में 7% था, 10% था, बिल्कुल, तो टीमें बनती नजर आती थी। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक दे नीड टू बी रिवाइव्ड। एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया जी। अगला सवाल हमें आया जी बहराम की तरफ से, जो कि तारिक ज़मान साहब आप बेहतर आंसर कर सकते हैं। हैज़ देयर बीन एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम द PHF रिगार्डिंग द ब्रेक डाउन ऑफ द रिसेंटली एलोकेटेड फंड्स? ये बिल्कुल वो राब्ते में है। इनफैक्ट अभी भी मीटिंग्स चल रही हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मिल के इस सारे प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर करेंगे। डायरेक्ट जो है वो वेंडर्स से कम्युनिकेट करेंगे, टिकटिंग हो गई, होटलिंग होगी, उसकी बुकिंग और प्लेयर्स के अलाउंसेस हो गए, वो सारे फंड्स। जैसे पहले भी PHF के ज़िम्मे ये है कि उन्होंने 10 करोड़ रुपया खुद से स्पॉन्सरशिप के तहत जनरेट करना है और 25 करोड़ ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से आ चुका हुआ है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगर हम प्रोफेशनली और प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग के शोबे को इस्तेमाल करेंगे तो शायद हम 10 से भी ज़्यादा जनरेट कर सकें, जो कि प्लेयर्स की फलाह के लिए इस्तेमाल कर सकें। मैं थोड़ा सा अगर सुहेलबाज पे वापस आऊँ, इख्तर भाई ने बड़ा सही जवाब दिया है, लेकिन सुहेलबाज को टाइम लगा है। सुहेलबाज को लोगों ने जाना जब उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, शुरू से सुहेलबाज नहीं था। लेकिन अभी देखें सुफियान जो है वो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर हुआ, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के कैलेंडर में वो गोल कर रहा है हमारे लिए। अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा मैच्योर होने में। इसी तरह हम और लड़कों को भी ट्रेन कर रहे हैं, थोड़ा मुश्किल है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में और सुहेलबाज और शहबाज सीनियर पैदा और टैलेंट की कमी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट नर्चरिंग द टैलेंट, जैसे कि अख्तर साहब ने अभी भी पॉइंट रेस किया। एक हमारे पास और जो ट्वीट है उसको भी हम शेयर करते हैं। इन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा सवाल लिख दिए हैं, लगता है कि कोई पेपर की तैयारी हो रही है, लेकिन ये जो उन्होंने एंड में लिखा है ना, मैं इस पे आना चाहती हूँ। इज़ पाकिस्तान ट्रूली रेडी टू कम्पीट एट द प्रो लीग? इसके ऊपर अगर आप जवाब दे सकें कि क्या हमारी इस वक्त तैयारी पूरी है प्रो लीग की, या थोड़ा सा और टाइम आइडियली तो चाहिए होगा? मेरे ख्याल से कि टाइम कम है, टाइम कम है, क्योंकि हॉकी फेडरेशन और खिलाड़ी और कोच तो इसी इंतज़ार में रहे हैं कि पता नहीं पैसे मिलते हैं नहीं मिलते। मेरे ख्याल से जैसे ही नेशन कप हुआ था उसके बाद से ही अगर हमारे कैंप लग जाते, खिलाड़ियों को कंबाइन कर लेते तो ज़रा बेहतर था। बहरहाल तो टाइम कम है। और यही अगर मैं ट्वीट दोबारा से अगर हम देख सकें अपने स्क्रीन पर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तारिक ज़मान साहब, आप इसको अगर टैकल करना चाहें। जी जी। नंबर 3 पे इन्होंने पूछा जी, मैनेजिंग टीम यूनिटी ड्यूरिंग टफ लॉसेस। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ज़ाहिर है हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन एज अ कोच आप कैसे टीम को मेक श्योर करते हैं कि वो यूनाइटेड रहें और उनके मोराल्स जो है वो हाई रहें इन हाई प्रेशर लॉसेस? देखें, ये सिर्फ मैच ख़त्म होने के बाद ही नहीं होता, मैच शुरू होने से पहले भी होता है। हमारी ये प्रैक्टिस है कि जैसे ही मैच ख़त्म होता है एक शॉर्ट मीटिंग करते हैं हम, जिसमें फिर गेम प्लान को डिस्कस करते हैं कि हमने क्या डिसाइड किया था, क्या किया है, क्या नहीं किया, और ये जो हमें फेस करनी पड़ रही है डिफ़ीट और उसकी वजूहात क्या हैं, और अगले मैच में इसको जाकर ना किया जाए। उसमें हम किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई नहीं करते, एज ए टीम अपना पोस्टमार्टम करते हैं, ताकि हमारा फोकस उन चीज़ों के ऊपर हो जो अगले मैच में हमने इम्प्रूव करनी है। चलें, इसी से कैरी फॉरवर्ड एक सवाल है कि अब क्योंकि लास्ट जो हमने देखा नेशंस कप में कुछ एरियाज, आपने भी हमारे साथ जब लास्ट शो में आप आए थे आपने बात की थी कि कन्वर्जन रेट्स थोड़े बेहतर हो सकते हैं पाकिस्तान के, पेनल्टी कॉर्नर्स में पाकिस्तान बेहतर कर सकते हैं। क्या स्पेसिफिक ड्रिल्स आप करवाते हैं टू मेक श्योर कि ये एरियाज कवर्ड हो? एज अ कोच किस तरह आप टैकल करते हैं ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स? देखिए, पहला तो यही होता है कि हम वर्बली चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, फिर हम जाके गेम एनालाइज करते हैं और उनके जो विजुअल एविडेंस हैं वो ढूंढते हैं जिनके ऊपर हमने बात की होती है, ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन एज अ फीडबैक जो हमने शेयर की है उसको हम वैलिडेट कर सकें थ्रू वीडियोस, ताकि उनमें सेल्फ रियलाइजेशन आ जाए कि हाँ यहाँ पे ये गलतियाँ हमसे हुई हैं।
फिर उसके ऊपर हम ट्रेनिंग तरतीब देते हैं और अगले सेशन में जाके हमने ट्रेनिंग करनी होती है। अगर ट्रेनिंग नहीं कर सकते तो फिर हम वीडियोस के थ्रू एक क्वेश्चन रेज करते हैं खिलाड़ियों को कि अब ये जो तुमने फैसला किया इस सिचुएशन में, अगर ये सेम सिचुएशन तुम्हें दोबारा कल फेस करनी पड़ेगी, तुम यही फैसला करोगे या इसको चेंज करोगे तो क्या करोगे। सो इससे हम कोशिश करते हैं उनको एजुकेट करें और इससे हमें बेहतरी भी होती है। मेन चीज़ ये होती है कि आप इंडिविजुअली ब्लेम ना करें खिलाड़ियों को, स्पेशली जब आप टूर्नामेंट में बाकी मैचेस भी खेल रहे हैं। सो एज ए टीम देखना चाहिए। अब देखिए ना, हम प्रेशर कैसे लेते हैं, मेरा टारगेट क्या है, मैंने 2 गोल करने हैं एज ए इंडिविजुअल, हमारी टीम जीतनी चाहिए। जब मैं यही सोचता रहूँगा तो दुनिया जहान का प्रेशर मेरे ऊपर आ जाएगा। जब मैं ये सोचूंगा मैंने 2 गोल करने हैं, वो गोल किस तरह करने हैं, मेरा प्लान क्या है, जब मैं उनके ऊपर फोकस करूंगा तो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। मेरी टीम जीतनी चाहिए, मेरा गेम प्लान ये है, रफ़ीक का रोल ये है, रफ़ीक भाई का, मेरा रोल ये है, अख्तर भाई का रोल ये है। जब हम अपने अपने रोल को फोकस करके अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने पे फोकस रहेंगे तो वो मैच जीतने का प्रेशर नहीं आएगा। अल्टीमेटली जब सारे अपना रोल बेहतर तरीके से प्ले करते हैं तो रिजल्ट अच्छा ही आता है, वो जीत में ही आता है। हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव को अपने सर में बिठा लेते हैं, फिर अगर ना हुआ तो क्या होगा, कैसे होगा, यही सोच के सारा प्रेशर ऊपर ले आते हैं। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि प्लेयर्स को एजुकेट करें कि उन्होंने इन प्रेशर्स को मिनिमाइज कैसे करना है। जब हम बाकी बड़ी टीम्स को देखते हैं, जो टॉप क्वालिटी टीम्स होती है, जब हम मैच को एज व्यूअर्स देख रहे होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन आपस में बहुत सीमलेस, बहुत स्मूथ, समटाइम्स इवन नॉन वर्बली वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं आपस में। ये बहुत ज़्यादा मैच प्रैक्टिस के बाद आप एज अ टीम इस पॉइंट तक पहुँचते हैं। बट एज अ कोच, हाउ आर यू वर्किंग टू इम्प्रूव द टीम्स on field communication and that seamless connection that they have? ये एक बड़ा ही वाइटल फैक्टर है और मैं समझता हूँ बड़ी यूनिक स्किल है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, जिसमें वर्बल भी है और आप सिग्नल्स भी यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। सो ये सारा ट्रेनिंग से आता है। जब तक आपने एग्जैक्टली सेम मैच सिचुएशंस को ट्रेनिंग सेशंस में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया होता, जिसमें आप स्लो से थोड़ा सा प्रोग्रेसिव और फास्ट एक्शंस पे चले जाते हैं और आसान सादा जो सिचुएशंस हैं उनको मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन बनाते हैं, तो फिर वो सारा प्रेशर उनको मैनेज करने का मौका मिलता है। लेकिन जब हम छोटे ग्रुप्स में उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं या उनको कोई असाइनमेंट देते हैं, उनमें फिर उनको ख़ास तौर पे कहा जाता है कि इस सिचुएशन में आप लोगों ने खुद से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। कि मैं अगर फर्ज कर लें अख्तर भाई और मैं इकट्ठे खेल भी रहे हैं ना, या मैं एक मिसाल देता हूँ कि शहबाज सीनियर और मैं जब वर्ल्ड कप 94 में खेल रहे थे, मेरी और उसकी एक बड़ी ब्लाइंड और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि वो कहता था जहाँ से मैं भागूंगा मुझे पास वहीं करना, क्योंकि मैं सिर्फ डिफेंडर को भगाने के लिए भागूंगा। सो ये हमने बड़ी पक्की हुई थी। वो यहाँ से भाग के 5 कदम वहाँ जाता था, मैं बॉल वहीं पे मारता था, वो वापस आके ले लेता था। सो इस किस्म की जो स्मॉल ग्रुप्स में उनकी ट्रेनिंग है ना, सो इसको हम कहते हैं ब्लाइंड अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये प्लेयर्स ने खुद से एक दूसरे के साथ डेवलप करनी होती है। ऑफ कोर्स हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, डिफरेंट जो गेम सिचुएशंस हैं उनको क्रिएट करके, ताकि उसके मुताबिक वो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से डेवलप कर सकें। अख्तर रसूल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का। ताहिर ज़मान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। रफ़ीक खान साहब, आपका भी, आप तीनों ने टाइम निकाला अपनी कीमती राय और ओपिनियंस और एनालिसिस हमें दी। थैंक यू सो मच एंड दिस इज़ ऑल वी हैव फॉर यू tonight on Sports Tonight. And before we wrap up, please do not forget to follow us across social media platforms if you haven't done that already. Facebook पे, Instagram पे and X पे. Make sure you're following PTV Sports and make sure you're engaging with us. जैसे हमने आज आपके सवाल इन्वॉल्व किए अपने शो में, आगे भी कोशिश होगी आपके सवाल फीचर करें. So make sure you're following us there. Thank you so much for watching Sports Tonight. Good night.